Hello, myself Nitish Verma, and today's lecture we will discuss about electric field due to some specific arrangements, like standard results are there. So we will discuss about like electric field due to infinite rod and some of arrangements of this infinite rod, like semi-infinite and infinite and finite length. So first of all, on the screen there is a rod which is given here. Let me just select the pen first. Okay, so this is the rod, and on the rod there is a positive charge is distributed. This is linear charge density. Lambda is equal to lambda coulomb per meter is given. Okay, and at a point P we have to find electric field EP. So how to find electric field EP? Okay, let's proceed. How to proceed this problem? Let's see. So first of all, I defined two axes because the length's first end is here and the last end is here. So I defined the angle in terms of angle. There is a theta 1 which defines the first end, if we call the first end, and second one as the lambda 2, which is this is lambda 2, and it is situated perpendicular distance from that rod is D. The point P is located. I have to find that EP. So for that I cannot find that in the electric field at EP because there is a charge which is not is a point charge, because we already know this point electric field due to point charge. Suppose this is a point and at a distance r something here, we have to find electric field. Then we can write the electric field as something k q upon the distance r square, where k is 1 upon 4 pi epsilon naught. So here the charge is in spread form, so we cannot find directly. We have to integrate this. So let me draw the diagram where we can find the charge. So first of all, I suppose मैंने यहाँ से y डिस्टेंस पे ऊपर जाकर एक छोटा सा एक एलिमेंट कट किया जिसकी लेंथ है dy. मैंने माना सपोज दैट दिस लेंथ इज dy. ओके, सो क्या मैं dy पे मैंने माना कि ये चार्ज dq है, छोटा सा चार्ज dq. क्या मैं dq को लिख सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ लेमडा? देन दिस इज लेमडा इज द चार्ज डेंसिटी and linear charge density and length is dy. And let me first write what is the tan theta of this triangle, because बाद में मैं जब इसको चेंज करूँगा मैं या तो इसको लीनियर चार्ज के लीनियर टर्म्स में निकाल सकता हूँ या एंगुलर टर्म्स में निकाल सकता हूँ, तो बाद में हमको इसकी ज़रूरत पड़ेगी. तो फर्स्ट आई डिफाइंड tan theta फ्रॉम दिस डायग्राम. ओके, तो tan theta इज y upon d, where I can write y is equal to d tan of theta. Okay, let me see first. Okay, then I have to find the electric field here. So due to this element, and this element is very small, so I can treat it like a point charge. So due to the point charge we can define the electric field here, and it is the electric field, it is along the line joining the point P in this direction, because it's a positive charge, so it's away from the body. Okay, then DE, suppose that this angle is theta, then we can also define this angle is theta. Okay, theta is there, then we have to find the distance x. So I can find the distance x from this triangle, which is nothing but, suppose I have to find cos of theta is equal to nothing but d upon x. So I have to find x, then x is equal to something d upon cos theta, and we can write d upon cos theta is d sec of theta. So I find that x. So x is nothing but d sec theta. I can write over here d sec of theta. So I just converted linear distance to angular distance, angular relation d sec of theta, and here I can find y is equal to d tan theta. So I can write this electric field dE from this diagram, which is that element is treated like a point charge because this is very small element. So how we find this element? मैंने y पे जाकर dy कट किया. So this segment, इस segment का अगर मैं लिखना चाहूँ इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि पॉइंट पे बनाएगा DE, और वो भी लाइन ज्वाइनिंग के बाद, तो DE को मैं लिख सकता हूँ DE is nothing but
के टाइम्स डी क्यू, छोटा सा चार्ज डी क्यू के कारण, अपॉन डिस्टेंस क्या होगा भाई, मुझे मिल चुका है एक्स स्क्वायर, और एक्स को क्या मैं लिख सकता हूँ, के डी क्यू अपॉन एक्स की वैल्यू क्या मैंने फाइंड की है, यहाँ पे है डी सेक थीटा, तो मैं लिख सकता हूँ क्या, डी सेक ऑफ थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं बात करूँ तो अगर ध्यान से देखूँ तो बिल्कुल सिमिलर फील्ड यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो इसके दो कंपोनेंट हो गए। क्या बात, इसमें क्यों दो कंपोनेंट्स होंगे, क्योंकि देखो अगर इधर से देखा जाए तो ये फील्ड चेंज हो रहा है, ये कांस्टेंट नहीं है, तो अगर मैं देखूँ तो इसके दो कंपोनेंट तोड़े जा सकते हैं भाई, डी ई कॉस ऑफ थीटा एंड डी ई साइन ऑफ थीटा। ओके, अगर मैं ध्यान से देखूँ तो डी ई कॉस थीटा और डी ई साइन थीटा, अगर हम यहाँ से देखें सिमिलर कॉन्सेप्ट, क्योंकि यहाँ से अगर मैं वाई डिस्टेंस नीचे जाऊँ और यहाँ पर सपोज दैट मैं कोई एलिमेंट कट करूँ तो एलिमेंट का एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट इधर जाएगा, इसका एक कंपोनेंट इधर जाएगा, और ये दोनों एक दूसरे को एक्चुअली कैंसिल आउट कर देंगे, टू डी साइन थीटा। बाकी टोटल मुझे क्या मिलेगा, डी ई कॉस ऑफ थीटा, तो मुझे डी ई कॉस थीटा निकालना है। अच्छा, मैं इसको जोड़ क्यों नहीं रहा हूँ, डी ई कॉस थीटा, क्यों मुझे ऐसा करना पड़ा है, क्योंकि भाई देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा चेंज हो रही है, मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है और डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है, सो वी हैव टू फाइंड इट बाई एक्सप्लेटिंग दिस कंपोनेंट। तो मैं इसका कंपोनेंट में एक्सप्लेट किया डी ई कॉस थीटा और डी ई साइन थीटा में, तो मैं अलग अलग डी कॉस थीटा निकाल लूँगा और मैं डी साइन थीटा का, मैं डी कॉस थीटा को अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ एक टर्म से, अगर मैं बोलूँ तो ये रॉड के परपेंडिकुलर है तो मैं इसे ई परपेंडिकुलर नाम दे देता हूँ, और ये रॉड के पैरेलल है तो मैं ई पैरेलल दे देता हूँ। मैं यहाँ मान लेता हूँ कि इसके दो फील्ड आएंगे, एक परपेंडिकुलर आएगा तो इसका नाम ई परपेंडिकुलर रखते हैं, और एक नीचे आएगा तो इसका नाम ई पैरेलल रखते हैं। ठीक है, मैंने माना ऊपर भी आ सकता था नीचे, लेकिन ये कैंसिल आउट कर जाएगा अगर ये सिमेट्रिक हुआ तो। लेट मी, पहले तो मैं जनरल केस के लिए डिस्कस कर रहा हूँ, फिर बाद में मैं सिमेट्रिक केस के लिए भी डिस्कस करूँगा। तो बेसिकली हमें दो चीज़ फाइंड करना है, क्या चीज़, एक तो पहली बात ई परपेंडिकुलर, और जो कि होगा डी ई कौन सा कंपोनेंट देगा, कॉस ऑफ थीटा, क्योंकि मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही रहेगा, ई नेट इधर ही रहेगा, मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही रहेगा, तो मैं अपने डी कॉस थीटा को इंटीग्रेट कर दूंगा विद प्रॉपर लिमिट्स, सो वी कैन फाइंड देन ई डी कॉस थीटा। इसी तरह मैं ई पैरेलल की बात कर रहा हूँ, ई पैरेलल इज नथिंग बट डी ई साइन थीटा, इसने मैंने साइन कंपोनेंट का, डी ई का साइन कंपोनेंट, ठीक है, उसको भी इंटीग्रेट करूँगा विद प्रॉपर लिमिट्स, तो हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो पहले डिस्कस करते हैं कि भाई डी ई कॉस थीटा होगा क्या, निकाल लेते हैं। तो यहाँ से मैं डिफाइन करूँगा ई परपेंडिकुलर, फिर लिमिट लगाऊंगा और इस पर लिखूँगा क्या, डी की वैल्यू डी के क्यू, के डी क्यू की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे मैं डी की वैल्यू डाल देता हूँ, डी की वैल्यू डायरेक्ट लिख सकता हूँ मैं क्या यहाँ पे, चलो लिख ही देते हैं, आप लिख दिया तो यहाँ पे हो जाएगा डी क्यू अपॉन क्या है वैल्यू इसका, डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, डी स्क्वायर ये साइन नहीं है सेक है, फिर से देख लेता हूँ, डी ई सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा, ओके 1 मिनट, हाँ ठीक है, डी ई सेक स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा है, कॉस थीटा को कॉस थीटा रहने देते हैं। अब भाई हमको डी क्यू निकाले थे, डी क्यू क्या था, डी क्यू मेरा कहाँ पे था, डी क्यू यहाँ पे, डी क्यू को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे है, डी क्यू को लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, देख लो ध्यान से, यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं डी क्यू को लेमडा डी वाई, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ई परपेंडिकुलर इज नथिंग बट के टाइम्स, इसको लिखूँगा लेमडा इंटू डी वाई की वैल्यू यहाँ पे है। अगर मैं इसको एक बार डिफ्रेंशिएट कर दूँ, सॉरी मैं यहाँ पर कर देता हूँ, वाई इज इक्वल टू क्या था अपना डी ऑफ टेन थीटा, मैं एक बार इसको डिफ्रेंशिएट करके डी वाई लिखना है, तो मैं डिफ्रेंशिएट कर दूँ तो डी वाई इज इक्वल टू नथिंग बट डी सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, तो मैं डी वाई की जगह यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, हाँ यहाँ पे लिख सकता हूँ, क्योंकि मैं इंटीग्रेशन कर नहीं सकता ना, एक लीनियर डिस्टेंस है, एक लीनियर डिस्टेंस और एक एंगुलर डिस्टेंस है, तो मुझे इसे या तो लीनियर में कन्वर्ट करना पड़ेगा या सर्कुलर में कन्वर्ट, सॉरी एंगुलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं डी वाई को यहाँ पे अब लिख सकता हूँ, मुझे सबको एंगल में कन्वर्ट कर देता हूँ, डिस्टेंस को एंगुलर डिस्टेंस, तो डी की जगह पे यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, डी वाई की जगह पे डी टाइम्स सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, और एक सब कॉस थीटा ऊपर तो है ही है, नीचे कितना बचा भाई डी स्क्वायर, ये तो था ही सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा। अगर ध्यान से देखा जाए तो नीचे ये ऊपर डी सेक स्क्वायर थीटा, ये सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल, डी से एक डी कैंसिल, एक डी बचा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, ई, इसको मैं लिख सकता हूँ, सो ई परपेंडिकुलर इज नथिंग बट के लेमडा तो कॉमन है अपॉन डी भी कॉमन है, अंदर क्या आ जाएगा भाई कॉस ऑफ थीटा इंटू डी थीटा, यही बचा।
अब हमको इंटीग्रेट कर देना है, कहाँ से कहाँ तक, प्रॉपर लिमिट देखें यहाँ पे मैंने डिफाइन किया हुआ है कि मैं ऊपर की तरफ मान लो एंगल θ1 जा रहा हूँ, तो नीचे की तरफ एंगल θ2, तो नीचे की तरफ अगर ऊपर को पॉजिटिव मैंने ले लिया तो नीचे क्या लूँगा, नेगेटिव। मैंने -θ2 से θ1 तक इंटीग्रेट कर दूँगा सिंपली। अगर मैं θ1 से θ2 तक इंटीग्रेट कर दूँ तो क्या लिख दूँगा मैं, ई परपेंडिकुलर इज़ नथिंग बट के लेमडा बाई डिस्टेंस डी। और कॉस थीटा का इंटीग्रेशन आपको पता है, कॉस का होता है साइन ऑफ थीटा का इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा -θ2 θ1 विच इज़ नथिंग बट के लेमडा बाई डी साइन θ1 माइनस साइन थीटा यानी -θ2। ओके, वो माइनस माइनस साइन माइनस थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा। तो ई परपेंडिकुलर इज नथिंग बट के लेमडा बाई डी, और यहाँ पे बचा आपका साइन θ1 प्लस साइन θ2। तो ये आपका इंटीग्रेशन हो गया और ये आपकी वैल्यू, ये ई परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ पे, अभी मैं इसको करता हूँ, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो मैं अभी तक ई परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड किया मैंने, अभी तक सिर्फ ई परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड करा है, ठीक है। यहाँ पे मैं ई परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड कर लिया। तो ई परपेंडिकुलर कितना आ गया हमारा, ठीक, यहाँ पे मैं लिखूँगा ई परपेंडिकुलर यहाँ पे आ गया कितना, ई परपेंडिकुलर इज नथिंग बट के लेमडा बाई डी साइन θ1 प्लस साइन θ2। ओके, अब मुझे ई पैरेलल फाइंड करना है। तो ई पैरेलल मैं यहाँ से लिख सकता हूँ क्या, ई पैरेलल इज़ नथिंग बट, ई पैरेलल को मैंने कैसे डिफाइन किया था, ई पैरेलल इज़, यहाँ पे लिख देता हूँ डी ई, कौन सा कंपोनेंट था भाई, साइन ऑफ थीटा का। बिल्कुल इसी तरह करेंगे, तो यहाँ पे डी ई की वैल्यू रखेंगे, सब कैंसिल हो जाएगा। फाइनली देखेंगे कि लेमडा बाई डी कॉमन हो जाएगा, इंटू यहाँ पे आएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा, और बिल्कुल वही करेंगे साइन θ2 और साइन θ1, साइन थीटा की इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ से ई पैरेलल का जो कंपोनेंट आएगा आपका के लेमडा बाई डी, और यहाँ पे कितना हो जाएगा साइन थीटा कंपोनेंट इंटू डी थीटा, सॉरी यहाँ पे डी थीटा भी बचेगा, आप करके देख लेना। तो यहाँ पे कितना बचेगा, साइन थीटा का कंपोनेंट कितना हो जाएगा भाई, साइन थीटा का इंटीग्रेशन, सॉरी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कॉस माइनस कॉस ऑफ थीटा, माइनस कॉस ऑफ थीटा, और वैल्यू पुट कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ से, सॉरी एक मिनट आते हैं, हाँ यहाँ से वैल्यू पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा, और ये वैल्यू -θ2 से θ1 तक। अगर मैं सॉल्व करूँ इसको तो के लेमडा बाई डी इंटू, मैं वैल्यू निकालूँ तो आ जाएगा आपका साइन, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा आपका, चलो रेड पेन से कर दिया था, रेड पेन से कर लेते हैं, कितना आ जाएगा आपका माइनस कॉस ऑफ θ1 माइनस, फिर माइनस यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा तो कॉस ऑफ θ1 माइनस कॉस ऑफ माइनस θ2, कॉस माइनस थीटा होता है कॉस θ2। तो ई पैरेलल इज नथिंग बट के लेमडा बाई डी, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये प्लस था ये, और एक माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा आपका कॉस ऑफ θ2 माइनस कॉस ऑफ θ2 माइनस कॉस ऑफ θ1, ये माइनस नहीं, ये माइनस में ही रहेगा, प्लस आ जाएगा, ठीक है। कॉस माइनस थीटा इज कॉस थीटा, तो ये आपका पैरेलल कंपोनेंट आ जाएगा, जो कि होगा आपका के लेमडा बाई डी कॉस θ2 माइनस कॉस θ1, वेयर थीटा कहाँ से कहाँ लिया गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से ऊपर की तरफ θ1, नीचे की तरफ θ2, और डी क्या है यहाँ पे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर ध्यान से देखो तो ये पैरेलल कंपोनेंट अब यहाँ लिख सकता हूँ, कितना आया भाई, ई पैरेलल इज नथिंग बट के लेमडा बाई डी कॉस θ2 माइनस ऑफ कॉस θ1। तो ये अपना रिजल्ट आया। अगर ध्यान से देखा जाए, मैं आगे की तरफ चलता हूँ, अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूँ, जैसे मान लो अगर मैं यहाँ से डिफाइन करूँ तो θ1, अब यहाँ पे दो चीज़ हमको बहुत ध्यान पड़ेगा। पहली बात तो डायरेक्शन ऑफ E1 क्या होगा और डायरेक्शन ऑफ ई पैरेलल क्या होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे डायरेक्शन मैं लिख सकता हूँ क्या, हाँ लिख सकता हूँ, डायरेक्शन ऑफ E1 अगर मैं लिखूँ तो किस पे डिपेंड करेगा भाई, तो डिपेंड्स अपॉन डायरेक्शन ऑफ E1 इक्वल टू डिपेंड्स अपॉन चार्ज Q1, डिपेंड्स अपॉन चार्ज Q, डिपेंड्स अपॉन चार्ज Q, जो भी चार्ज हो, या चार्ज Q क्या कह सकते हैं, लेमडा कह सकते हैं। इस तरह डायरेक्शन ऑफ
E2 की बात करें तो E2 मतलब सॉरी ई पैरेलल की बात करें, ये परपेंडिकुलर था और दूसरा को मैंने डिफाइन किया था जो पैरेलल कंपोनेंट था ई पैरेलल। तो डायरेक्शन ई पैरेलल की बात करें तो ई पैरेलल इज नथिंग बट, यहाँ पे देख लेंगे तो डायरेक्शन ये भी किस पे डिपेंड करेगा, डिपेंड्स अपॉन चार्ज डेंसिटी और लेमडा। अगर लेमडा पॉजिटिव हुआ तो जो डायरेक्शन हमने पॉजिटिव मान के किया है, अगर लेमडा पॉजिटिव हुआ तो जो डायरेक्शन माना हुआ अज्यूम डायरेक्शन बिल्कुल सही है। अगर नेगेटिव होगा तो ये अंदर की तरफ होगा, ये अंदर की तरफ होगा और ये ऊपर की तरफ होगा। अगर ध्यान से देखें तो जैसे मान लो मेरे सामने ये प्रॉब्लम है, अब इसको मैं यहाँ पे बना देता हूँ। जैसे मैं इसमें θ1 θ2 कर, जैसे मान लो ये यहाँ पे लेमडा कूलम पर मीटर हमारे पास दिया, ये डिस्टेंस दिया d, तो मैं θ1 θ2 को क्या लिखूँगा, यहाँ पे मुझे फाइंड करना है इस प्रॉब्लम को एग्जाम्पल की तरफ ले सकते हैं। ठीक है, एक मिनट, यहाँ से हम लोग ले सकते हैं इसको एज एग्जाम्पल ले सकते हैं इसको। ठीक, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या, छोड़ो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे θ1 डिफाइन कर देते हैं। θ1 कोई भी ले लो, चाहे इधर से लो चाहे इधर θ1 तो दूसरा इधर θ2। तो θ1 कितना हो गया भाई 60 डिग्री और θ2 कितना हो गया 30 डिग्री। ठीक, डिस्टेंस क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो हमें कोई दिक्कत है ही नहीं, ये रख देंगे वैल्यू आ जाएगा। ठीक, अच्छा इसमें पैरेलल अब बात करते हैं थोड़ी सी और आगे, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसमें एक और। मान लो मैंने ये ले लिया है, अभी ये नोट करने लायक है, ये पॉइंट आप नोट कर लिया, मैंने ये क्वेश्चन ले लिया। ठीक है, अगर ध्यान से देखें पहले यहाँ पे देखते हैं दूसरे वाले साइड में, तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं। अगर यहाँ पे देखो तो मैं सिमेट्रिक है, ये θ1 कितना भाई, θ1 45 डिग्री और बिल्कुल θ2 कितना है 45 डिग्री। यू फाइंड अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज ए। अगर मैं बात करूँ तो ये θ1 और ये आपका θ2। ध्यान से देखोगे तो ये आपकी रॉड थी, अच्छा ये रॉड है, इस रॉड में अगर ध्यान से देखा जाए तो ये बिल्कुल सिमेट्रिक है। अच्छा ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे पूछ रहा है, कहीं पॉइंट ए डिस्टेंस पे, ये पॉइंट पी है, तो ई पी आपका क्या होगा, तो ई पी इज नथिंग बट इसके दो कंपोनेंट होंगे, ये परपेंडिकुलर अगर मैं बात करूँ तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट तो कभी जीरो होगा ही नहीं। अगर ध्यान से देखें तो दोनों तरफ सिमेट्री है, तो ये इसका जितना यहाँ पे अपर की तरफ देगा फील्ड, उतना ये वाला पोर्शन इसमें नीचे की तरफ देगा, तो इसके नीचे उसके ऊपर वाला कंपोनेंट कट जाएगा, जो बचेगा तो परपेंडिकुलर। यानी कि ई पैरेलल जो है सिमेट्री के कारण, ई पैरेलल जो आएगा वो आपका क्या आएगा, वो आपका जीरो हो जाएगा, ये ड्यू टू सिमेट्री ऑफ डायग्राम, क्योंकि ये जितना ऊपर है उतना नीचे है। अब इसी क्वेश्चन में अगर मैंने बोल दिया कि ऊपर वाला, अब ये तरफ देखते हैं, इधर क्वेश्चन में अगर मैं बोलूँ तो θ1 यहाँ पे कितना है 60 डिग्री और यहाँ पे θ2 कितना है, θ1 इज 60 डिग्री और θ1 कितना है भाई, θ2 इज 45 डिग्री। अगर ध्यान से देखो तो इसमें क्या ई परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा, हाँ बिल्कुल आएगा। ई परपेंडिकुलर कंपोनेंट कैन नेवर बी जीरो, क्योंकि उसमें पॉजिटिव है, वो जीरो हो नहीं सकता, क्योंकि ई परपेंडिकुलर इज नथिंग बट, अगर मैं ई परपेंडिकुलर कंपोनेंट अभी निकाला तो मैंने क्या लिख सकता हूँ, के लेमडा बाई डी। इसमें देखो कहीं भी माइनस साइन नहीं आ रहा, साइन θ1 प्लस, अगर ध्यान से देखो यहाँ पे कहीं माइनस आनी है तो ये जीरो हो नहीं सकता, तो ई परपेंडिकुलर कंपोनेंट हमेशा रहेगा। क्या ई पैरेलल जीरो हो गया क्या इस बार, मैं यहाँ पे देख सकता हूँ ना, ई पैरेलल जीरो हो गया क्या, यहाँ पे रख के भी देख लो आप फार्मूले में, ई पैरेलल इस केस में ई क्या हो जाता है भाई, के लेमडा बाई डी कॉस ऑफ 45 माइनस कॉस ऑफ 45। ठीक है, यहाँ तो जीरो हो जाएगा ना, और यहाँ पे जीरो, ई परपेंडिकुलर तो जीरो नहीं होगा, ई पैरेलल भी चेक कर लो जीरो नहीं होगा, क्योंकि देखो इतना ये पोर्शन कहाँ लगेगा, ये एक्स्ट्रा पोर्शन है, ये अगर मैं बोलूँ तो ये एक्स्ट्रा पोर्शन है, इस एक्स्ट्रा पोर्शन के कारण नीचे वाला पैरेलल कंपोनेंट जीरो नहीं होगा। और निकाल भी सकते हैं इसको, बहुत आसान है, बहुत ईजी है, आप निकाल सकते हो इसको आराम से फार्मूला यूज करके। ठीक, ई पैरेलल जीरो है, ई परपेंडिकुलर निकालना है तो आप एक θ1 60 रख दो और θ2 45 रख के निकाल सकते हो। ठीक है, कैलकुलेशन वाला पार्ट आप खुद ही कर सकते हो। ठीक है, अच्छा अब आगे चलते हैं। अगर मान लो ये जगह के यहाँ पे ऐसा कोई डायग्राम हो, मतलब कहने का मतलब यहाँ पे कितनी एंगल है 60 डिग्री, ये भी एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं, चलो एक क्वेश्चन के तौर पे ले सकते हैं। अगर मैं बताऊं कि ये चीज़ आपका 60 डिग्री है और ये इस पर लेमडा कूलम पर मीटर आपका चार्ज डेंसिटी दिया गया है। अगर मुझे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है तो देखो ध्यान से कि ये साइड आपका ए दे रखा है, ए स्मॉल ए में रेड पेन से यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, ये साइड आपका ए दे रखा है, ये है ए, ये चीज़।
तो अगर मैं ध्यान से देखूँ तो इसको कैसे निकालोगे? अगर ध्यान से देखा जाए तो उसमें थीटा 1 थीटा 2 क्या डिफाइन करेंगे? सबसे पहली बात मैं इसको थोड़ा सा इधर बना दूँ जो आपको यूज़ टू आप देखने के लिए, क्योंकि सवाल थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया तो आप दिक्कत में ना आ जाओ, तो इसको मैं इधर बना देता हूँ। सपोज दैट ऐसा कुछ है, यहाँ पे है और ये दे रखा था आपका, ये एंगल दे रखा है 30 और ये एंगल दे रखा है आपका 60। अगर ध्यान से देखो तो ये था आपका इस पे लेमडा कूलम पर, ये है आपका रॉड, इसकी जो डेंसिटी थी वो कितनी थी? लेमडा कूलम पर मीटर। ठीक है, तो ध्यान से देखो तो थीटा 1, जो थीटा 1 बोला तुमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जो, तो थीटा 1 यहाँ पे डिफाइन करोगे। थीटा 1 तो सिंपली हम लिख सकते हैं इसको 60 डिग्री, कोई दिक्कत है यहाँ पर, कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। थीटा 1 तो सीधे लिख रहा है, एक दूसरी तरफ। अब दूसरी तरफ क्या है? थीटा 2, और थीटा 2 को लिखेंगे क्या? या तो काम करो, इधर मैंने पॉजिटिव डिफाइन किया है, मैंने एक्स एक्सिस से इधर को जाके एंगल पॉजिटिव डिफाइन किया है, इधर वाली एंगल को नेगेटिव डिफाइन किया है। या तो आप थीटा 2 को क्या बोल दो, थीटा 2 को डायरेक्ट पॉजिटिव एंगल से जाओगे तो कितना होगा? थीटा 2 आपका यहाँ से जाओगे पॉजिटिव एंगल से, तो यहाँ से जाकर यहाँ, यानी कि कहने का मतलब यहाँ से जाकर यहाँ, तो ये एंगल पॉजिटिव में कितना हो जाएगा क्लॉकवाइज? 360 माइनस 30 कितना हो जाएगा? 330। या इसको आप बोल सकते हो थीटा 2 को, और वी कैन से थीटा 2 इज़ माइनस 30 डिग्री, दोनों कह सकते हो, बात एक ही है। थीटा 2 को डिफाइन कर सकते हैं 330 डिग्री और माइनस 30 डिग्री। तो आप यहाँ पे क्या डिफाइन करोगे भाई? थीटा 1 हो गया आपका कितना? अच्छा, एक चीज़ और था, ये डिस्टेंस आपकी दे रखी थी ए, और मैंने बोला था जो वो डिस्टेंस है डी, वो क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए। तो ये आपको सीखने के लिए प्रॉब्लम था, सिखाने के लिए कि क्या क्या मैंने चीज़ें यूज की। आपको फार्मूला तो याद हो जाता है, लेकिन ये चीज़ों में कैसे यूज करते हैं इस फार्मूले में, क्या क्या इसका सिग्निफिकेंस है, फार्मूले में कौन कौन सा डिस्टेंस कैसे लिया जाता है, वो चीज़ है। तो अगर मैं यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे ए कितना लिख सकता हूँ भाई? ए, ये एंगल कितना था? 30, तो ये क्या लिख सकता हूँ मैं? ए कॉस 30, दिस इज़ योर डी पर डी, तो ये आपका डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ए कॉस 30। तो यहाँ लिख सकता हूँ भाई थीटा इज़ 1 इज इक्वल टू 60, नो प्रॉब्लम। थीटा 2 में लिख सकता हूँ माइनस 30, और डी जो डिस्टेंस होगा वो ये डिस्टेंस होगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, तो हमेशा याद रखो डी डिस्टेंस क्या हो जाएगा? यहाँ पे लिख दूँगा ए कॉस ऑफ 30 विच इज़ नथिंग बट डी इज इक्वल टू ए बाई 2। अब मैं सॉल्व कर लूँगा, क्योंकि इसमें दोनों कंपोनेंट आने हैं। ई पैरेलल यहाँ पे आएगा, सॉरी ई परपेंडिकुलर यहाँ पे आएगा, और पैरेलल कंपोनेंट यहाँ पे आएगा, क्योंकि ऊपर ज़्यादा है। तो मैं ई परपेंडिकुलर का फार्मूला लिखूँगा, यहाँ पे क्या लिखूँगा? के लेमडा बाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। मैंने फार्मूले में एक बार ले लिया, साइन थीटा 1 साइन थीटा 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? के टाइम्स लेमडा बाई डी की वैल्यू भाई ए बाई 2, तो मैं ए रखूँ यहाँ पे, 2 यहाँ पे कर दूँ। साइन थीटा कितना है? साइन थीटा फर्स्ट 30 साइन 60, तो फाइन साइन 60, और ये कितना हो जाएगा? माइनस 30, तो माइनस साइन ऑफ 30 डिग्री। बिल्कुल इसी तरह से निकाल लेंगे आप, और बिल्कुल पैरेलल वाला भी इसी तरह से निकाल लेंगे। ई पैरेलल आपका क्या हो जाएगा? ई पैरेलल हो जाएगा के लेमडा बाई डी, अब ये हो जाएगा कॉस थीटा 2 मतलब कॉस माइनस 30, इसको कॉस 30 लिख सकता हूँ, माइनस ऑफ कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1 कॉस ऑफ 60, इसको भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो आपको पता चला कि यानी कि 3 चीज़ें हमको पता चली इसमें। क्या चीज़? कि सबसे पहले यार थीटा 1 और थीटा 2 क्या होना चाहिए, और थीटा क्या होना चाहिए। ठीक है, तो थीटा 1 इज़ नथिंग बट थीटा 1 क्या हो जाएगा आपका? थीटा 1 एंड थीटा 2 ऑलवेज टेकन इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में लिया गया है, उसी को हम पॉजिटिव मानेंगे। अगर मैंने थीटा 1 इधर पॉजिटिव लिया है, तो थीटा 2 को इधर लिया मैंने, मैंने ये डायरेक्शन को पॉजिटिव मान के लिया। ठीक है, तो थीटा 1 थीटा 2 ऑलवेज लाइक टेकन, ये नोट करके लिखो, इन अपोजिट डायरेक्शंस। एंड सेकंड पॉइंट इज क्या इंपॉर्टेंट है इसका, और डी इज ऑलवेज अ डी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम रॉड, ये हमेशा याद कर लेना, नहीं तो फार्मूले में आते हुए भी क्वेश्चन गलत कर दोगे। ठीक है, अगर ये बात करा जाए तो ये बिल्कुल मैंने 3 केसेस की बात की। सबसे पहले ई पैरेलल कैसे फाइंड करना है, ई पैरेलल कैसे फाइंड करना है, ई परपेंडिकुलर कैसे फाइंड करना है, और इनमें थीटा 1 थीटा 2 कैसे लेते हैं, और डिस्टेंस इनका परपेंडिकुलर लेते हैं। ये चीज़ें बात कर ली हमने। अब इनके 3 केसेस आते हैं, इनमें क्या है, कुछ अल्टरनेटिव इसके केसेस आते हैं, कुछ केसेस आते हैं, इनको बोल सकते हैं अल्टरनेटिव केसेस। तो केस 1
अल्टरनेटिव केसेस, इसमें मैं केस 1 ले लेता हूँ, इसी को मॉडिफाइड करना है। इसको मैं ले लेता हूँ पहला केस सेमी इनफाइनाइट रॉड, सेमी इनफाइनाइट वायर या रॉड कहो, ठीक है, यानी कि वायर इतना इनफाइनाइट वायर मतलब बोले तो इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। इनफाइनाइट ऐसा कोई वायर नहीं है कि इनफाइनाइट, इट्स अ रिलेटिव टर्म विच इज़ डिफाइंड एज, जैसे मान लो कि मेरे पास एक रॉड है, ये 1 मीटर का है और मैं इसके बहुत छोटी सी जगह पे ये डिस्टेंस 0.01 सेंटीमीटर पे मुझे कुछ मान लो मुझे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। ये आपका रॉड है जिस पे लेमडा कूलम पर मीटर चार्ज है प्लस लेमडा कूलम पर मीटर, तो मुझे फाइंड करना है, यानी कि ये डिस्टेंस इसके रिलेटिवली बहुत स्मॉल है, यानी कि इसके लिए ये रॉड एक्ट लाइक है इनफाइनाइट रॉड, ठीक है नहीं इनफाइनाइट रॉड, लेकिन इट्स अ रिलेटिव टर्म, इट्स अ रिलेटिव टर्म, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि अगर मैं सेमी इनफाइनाइट रॉड की बात करूँ तो एक तरफ तो भैया आपको मिला ये धरती है और दूसरी तरफ ये एंगल बहुत बहुत बड़ा है, यानी कि अगर मैं इसको देखूँ तो θ1 कितना हो जाएगा 90 डिग्री, बहुत, जैसे आप किसी टॉल बिल्डिंग के एकदम जस्ट नीचे खड़े हो एकदम पास में, तो आप ऊपर देखोगे तो कितना मिलेगा आपको, इनफाइनाइट तक दिखेगा, तो θ1 आपको पूरा मुंडी कितना उठाना पड़ेगा 90 डिग्री, और नीचे देखोगे तो बेस पे ही मिलेगा, यानी कि θ2 कितना हो जाएगा इसका 0 डिग्री। अब आप इसको यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं θ2 0 डिग्री, तो इसको आप इस फार्मूले में रख देना कि आप यहाँ पे कौन कौन सा कंपोनेंट आएगा, ई परपेंडिकुलर आएगा, ठीक है, और ये भी नॉन जीरो होगा, ई पैरेलल भी नॉन जीरो होगा, ठीक है, लिख सकते हैं भाई, ई परपेंडिकुलर ई पैरेलल निकाल सकते हैं यहाँ पे डायरेक्ट, लिख लो जल्दी से, ये रिजल्ट कुछ याद होने चाहिए आपको। तो सबसे पहले ई परपेंडिकुलर मैंने लिखा, जल्दी से क्या लिखा मैंने, सेम फार्मूला, सॉरी 2 कहाँ से आ गया यहाँ पे, तो के लेमडा, सॉरी चलो 2 मैंने लिख दिया था, चलो के टाइम्स लेमडा अपॉन डी इंटू साइन θ1 प्लस साइन θ2, साइन θ1 प्लस साइन θ2 रखो भाई, साइन θ2 0 है, ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा 1 रख लेते हैं, ई परपेंडिकुलर इज इक्वल टू के लेमडा बाई डी साइन 90 प्लस साइन 0, ये तो भाई 0 दिया, ये कितना दिया 1, तो आपकी सीधे वैल्यू कितना आ गई के लेमडा बाई डी। इसी तरह अगर मैं बात करूँ ई पैरेलल की, ई पैरेलल यहाँ पे निकाल देंगे, ई पैरेलल यहाँ निकाल देंगे, ई पैरेलल की बात करोगे तो कितना हो जाएगा के लेमडा बाई डी cos θ2 मतलब cos 0 माइनस cos θ1 कितना हो गया cos ऑफ 90, तो इस बार ये 0 देगा, ये कितना देगा 1, तो आपका फिर ई पैरेलल यहाँ पे कितना आ गया के लेमडा बाई डी, ठीक है, तो ई भी के लेमडा बाई डी, ई परपेंडिकुलर भी के लेमडा बाई डी, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि ई पैरेलल भी, और ये भी 0 नहीं है, 0 कहाँ से हो जाएगा, तो यहाँ से सीधे मैं लिख सकता हूँ कि ई परपेंडिकुलर जब भी सेमी इनफाइनाइट के केस में, सेमी इनफाइनाइट कितना आ जाएगा के लेमडा बाई डी, ई पैरेलल इन केस ऑफ सेमी इनफाइनाइट तो कितना आ जाएगा भाई के लेमडा बाई डी। अगर मैं नेट बोलूँ तो नेट भी निकाल लोगे, इन दोनों को नेट निकालोगे तो इन दोनों को परपेंडिकुलर √2 टाइम्स के लेमडा बाई डी हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे ई परपेंडिकुलर भी। अब आगे की बात करते हैं, कुछ दूसरा भी केसेस है। अब मैं बात करता हूँ कि इनफाइनाइट रॉड पे, इनफाइनाइट रॉड में भी मैंने बताया बिल्कुल वही चीज़, इनफाइनाइट से रिलेटिव टर्म यहाँ पे लिखा हुआ है, इनफाइनाइट रॉड इज़ अ रिलेटिव टर्म। मैंने पहले बताया अगर मैं 1 मीटर के रॉड के सामने आपको 0.1 mm पे आपको बोलूँ कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करो, तो आपके लिए ये क्या लगेगा सोचो, तो ये आपके लिए एकदम रिलेट बहुत बड़ा लगेगा, ये मैं बोल सकता हूँ इनफाइनाइटली लार्ज, तो ये बोल सकता हूँ इनफाइनाइट रॉड है, इट्स अ रिलेटिव, एक्चुअल में कोई चीज़ इनफाइनाइट नहीं होती है, ठीक है, इट्स अ रिलेटिव टर्म, किसी के रिलेशन में बोलते हैं, ठीक। तो ये अब बात करते हैं, मान लो एल बहुत, इसको अलग तरीके से ऐसे भी दिखा सकते हैं, वेयर एल इज़ ग्रेटर देन डी, डी इज़ स्मॉल डिस्टेंस ना, तो यहाँ पे इसको इनफाइनाइट रॉड बोल सकते हैं। इनफाइनाइट मतलब दोनों तरफ ये इन्फिनिटी तक फैला हुआ है, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ क्या, बिल्कुल उसी तरह मैं यूज कर लेता हूँ यहाँ पे कि θ1 इस बार देखने के लिए पूरा सर हमको ऊपर उठाना पड़ेगा, तो θ1 कितना खुलेगा 90, बिल्कुल नीचे देखने के लिए, इसके पाँव देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे नीचे भी इनफाइनाइट तक माइनस इनफाइनाइट तक फैला हुआ है, तो क्या लिखेंगे, इस पर लेमडा कूलम पर मीटर चार्ज है, नीचे देखना पड़ेगा तो θ2 भी हमको लिखना पड़ेगा 90 डिग्री, तो यानी θ1 और θ2 दोनों। अच्छा θ यहाँ पे देखा जाए तो ई पैरेलल 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि सिमेट्रिसिटी है भाई, ये देखिए आपको पहले ही बताया मैंने, ऊपर बताया यहाँ पे, अगर ये पैरेलल है तो अगर ये सिमेट्रिक है, जितना ऊपर उतना नीचे, क्योंकि बहुत लार्ज है ले सकते हैं, इसका एग्जैक्ट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो खींच नहीं सकते,
तो बोल सकते हैं कि ये ई पैरेलल कंपोनेंट जीरो का अगर नहीं रखना तो फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। तो थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस होता है, आपको डायरेक्ट मैंने बता दिया है किस तरह देखा जाता है। ई परपेंडिकुलर आएगा तो ई परपेंडिकुलर के लिए सीधे हम डायरेक्ट निकाल लेंगे। ई परपेंडिकुलर बस नथिंग बट के लेमडा बाई डी, और ब्रैकेट में आपको बस साइन थीटा 1 प्लस, ये कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट जो आपको याद करने पड़ेंगे। ये रिजल्ट मैग्नेटिज्म में भी काम देंगे जब आप मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे जब करंट कैरिंग वायर के कारण किसी डिस्टेंस डी पर, तो बिल्कुल ऐसे ही फार्मूला वहाँ पे बनता है। ठीक है, वहाँ पे एक ही कंपोनेंट रहता है, दोनों कंपोनेंट नहीं रहते हैं। खैर वो तब की बात है, बाद में देखेंगे, अभी फ़िलहाल इस पर कंसंट्रेट करते हैं। तो ई परपेंडिकुलर जो आपका है वो आ जाएगा के लेमडा बाई डी। अब हमें पता है कि दोनों चीज़ क्या हो गई भाई, दोनों 90 डिग्री हो गए, तो के लेमडा बाई एक ऊपर खुल रहा है एक नीचे खुलेगा, तो दोनों पॉजिटिव। के लेमडा बाई डी इज इक्वल टू साइन 90 प्लस साइन 90, दिस इज नथिंग बट 1 1, ये वन तो कितना हो जाएगा भाई, तो यहाँ से लिख लो, यहाँ लिख लो ई परपेंडिकुलर, रुक जाओ थोड़ा सा स्पेस है नीचे, तो ई परपेंडिकुलर इज नथिंग बट, यहाँ लिख देते हैं परपेंडिकुलर नथिंग बट इज 2k लेमडा बाई डी, वेयर डी इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द रॉड, लेमडा इज द चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑन द रॉड। तो आपको सीधे डायरेक्ट आपको फार्मूला याद हो गया, तो क्या हो जाएगा भाई 2k लेमडा बाई डी, सिंपल। इनका डायरेक्ट यूज होता है तो आपको डायरेक्ट इसका फार्मूला लगाने आना चाहिए। अच्छा, कुछ केसेस में ऐसे भी हो जाएंगे कि कुछ केसेस में ऐसे भी हो सकते हैं कि ये फाइनाइट रॉड ले ले तो थीटा 1 थीटा 2 क्या हो जाएगा, फाइनाइट हो जाएगा। इस बार आपको निकालना पड़ेगा थीटा 1 थीटा 2, और यहाँ फाइनाइट हो जाएगा तो भाई पता है कि आपको एग्जैक्टली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है, सिमेट्रिक है। ये लिख देता हूँ केस फाइनाइट लेंथ रॉड, फाइनाइट लेंथ रॉड के केस की बात कर रहा हूँ मैं। अगर मैं फाइनाइट लेंथ की बात करूँ तो थीटा 1 थीटा 2 मैंने यहाँ पे लिख दिया है। थीटा 1 कितना हो जाएगा, थीटा को मैंने थीटा मान लिया, थीटा 2 को मैंने। अब अगर ध्यान से देखा जाए तो ये क्या इसके बराबर है, तो पैरेलल कंपोनेंट मैंने सिखाया आपको, पैरेलल कंपोनेंट नहीं आना चाहिए, नहीं आया, जीरो। अगर यहाँ पे निकालना चाहिए, एस में निकालना चाहोगे पैरेलल कंपोनेंट तो आप फार्मूला में रख के निकाल सकते हो कि भाई दोनों 90 है, आप निकालोगे डायरेक्ट आ जाएगा। बिल्कुल सेम यहाँ पे भी निकाल सकते हो, बट निकालने की जरूरत क्या है, आपको मैंने बता दिया किस तरह से आप चेक कर लोगे। सिमेट्रिक होगा तो भाई पैरेलल कंपोनेंट जाएगा। अब मुझे ई परपेंडिकुलर फाइंड करना है, तो चलो फाइंड कर लेते हैं, बिल्कुल वैसे ही फाइंड करना है। तो ई परपेंडिकुलर, इस बार ये फाइनाइट लेंथ है और ये डिस्टेंस आपका डी दे रखा है ऑलरेडी। चलो तो फिर निकालते हैं के टाइम्स लेमडा टाइम्स डी, और यहाँ पे आपका हो जाएगा साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, क्योंकि परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालना है, याद रहना चाहिए। ठीक है, अच्छा ई परपेंडिकुलर जब आपको निकालना है तो ई परपेंडिकुलर इज नथिंग बट, यहाँ पे के लेमडा के को के ही रहने दो, के यहाँ पे 1/4 एप्सिलॉन नॉट डी डी कह गया, और यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा प्लस साइन थीटा। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ क्या 2 टाइम्स के लेमडा बाई डी इंटू साइन ऑफ थीटा। अब साइन थीटा की वैल्यू यहाँ ट्रायंगल से रख दीजिए। अगर मैं मान लूँ ये लेंथ एल है तो क्या मैं इसको l/2 को बोल सकता हूँ, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा भाई d² प्लस l/2 का होल स्क्वायर। अब ये वैल्यू यहाँ उठा के रख दो, साइन थीटा की वैल्यू ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट आ जाएगा। चलो रख देते हैं और देखते हैं। तो यहाँ से ई परपेंडिकुलर जो आएगा वो आ जाएगा आपका 2k लेमडा बाई डी इंटू साइन थीटा। साइन थीटा क्या होगा भाई, इस ट्राइंगल में अगर देखें, इस ट्राइंगल में अगर मैं देखूँ तो इस ट्राइंगल में थीटा ये है, ये आपका l/2 है और ये डिस्टेंस d है, तो ये लेंथ मैंने बताया l/2 का होल स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। तो यहाँ पर रख दूंगा तो क्या हो जाएगा भाई साइन थीटा मतलब परपेंडिकुलर पर हाइपोटेन्यूज, तो रखो l/2 अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है √d² प्लस l²/4। इसको सॉल्व कर लोगे, फर्दर सिंप्लीफाई कर लोगे तो 2 नीचे से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे लिख सकता हूँ 2k लेमडा बाई डी, डायरेक्ट यहाँ से लिख जाएगा, क्योंकि यहाँ से जब 4d² हो जाएगा और यहाँ पे 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो खोलेंगे तो यहाँ से डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ l अपॉन नीचे बचेगा 4d² प्लस l², यानी कि ई परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही रहेगा और ये वैल्यू इसकी आएगी, तो यहाँ से आप निकाल सकते हो। ठीक है भाई, चलो यहाँ से देखते हैं, आगे की केसेस देखते हैं। तो ये 3 केस इंपॉर्टेंट है। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा कि ये तीनों केस, और हमने पढ़ा अभी सिंपल कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट रॉड एट अ डिस्टेंस डी कितना होगा, कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो उसमें 2 कंपोनेंट आएगा, ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल, जिसके लिए दोनों फार्मूला लिख दिया। ई परपेंडिकुलर निकालना है तो हमें लिखना पड़ेगा 2k लेमडा अपॉन डी इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। इसी तरह निकाल लेंगे हम लोग ई पैरेलल cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1 इंटू k लेमडा बाई डी। अगर मैं देखो ये आपके सामने एक क्वेश्चन मैंने एग्जांपल लिया है यहाँ पे,
कि अगर ये एग्जांपल आपको दिया हुआ हो कि इसमें माइनस लेमडा, जिस तरह से फाइनाइट लेंथ का रॉड होगा, ये 4 चीज़ है, ठीक है। आप एक बार यहाँ पे देखो 4, एक आपको स्क्वायर बना के रखा हुआ है, ठीक है, जिसकी यह है आपका, लिख देता हूँ मैं, स्क्वायर ऑफ साइज ए, ये लिखा हुआ है। आपको फाइंड करना है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर के सेंटर पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, सिंपल सा देखो, आप देखते हैं यहाँ पे 2 पॉजिटिव, यहाँ पे इस रॉड के कारण अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे एक कंपोनेंट यहाँ से देखा जाए, एक कंपोनेंट ये परपेंडिकुलर आएगा, पैरेलल तो आना नहीं है, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये चीज़ और ये चीज़ बराबर है, ठीक है। और दूसरी चीज़ अगर मैं देखूँ तो इसके कारण तो इधर आया, अच्छा इस वाले के कारण ये क्या होगा, दूर भगाएगा, हमेशा देखो दूर ही आया, ये चीज़ आया। अच्छा ये माइनस है तो ये क्या करेगा भाई, माइनस के कारण किधर आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ध्यान से देख के बताओ, परपेंडिकुलर होगा तो ये अगर पॉजिटिव रहता तो ये इधर आता, लेकिन अब क्या है, ऊपर ही जाना है, क्यों, क्योंकि ये फिर सबकी मैग्नीट्यूड सेम होगी, क्यों, क्योंकि चार्ज और डिस्टेंस भी सेम ही है। डिस्टेंस कितनी है, a/2, तो एक का निकाल लो, सब निकल जाएगा, तो ये भी ऊपर जाएगा। तो कोई भाई इसको डिलीट करके थोड़ा सा इरेज करके फिर से बना देता हूँ, मैं दूसरे पेन से बना देता हूँ। चलिए यहाँ पे देखते हैं, एक यहाँ पे आएगा, ठीक है, ठीक है। और दूसरी चीज़ इसके कारण भी यहाँ पे आएगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज होता है दूर जाता है, अभी यहाँ पे आएगा। तो भाई 4 चीज़ हैं, आपको निकालना है कि अगर मैं एक की बात करूँ तो सब ई परपेंडिकुलर, सब ई परपेंडिकुलर है भाई, मैग्नीट्यूड वाइज तो सब सेम है, तो मैग्नीट्यूड में ई परपेंडिकुलर कितना आएगा, अगर मैं बात करूँ तो आ जाएगा क्या, के लेमडा बाई डी इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। अगर ध्यान से देखो तो ये स्क्वायर है, जब ये स्क्वायर है तो ये एंगल कितना बनाएगा, यहाँ से देख लो, ये 45 डिग्री थीटा 1, और ये कितना 90 डिग्री होता है, ये कितना हो जाएगा 45, ये 45, तो थीटा 1 45, थीटा 2 45 रखेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, E1 इज इक्वल टू नथिंग बट 2k लेमडा बाई डी इंटू साइन 45, साइन 45 विच इज नथिंग बट, यहाँ से रख देते हैं ना 2k लेमडा बाई डी, और डी की वैल्यू भी रख देते हैं, चाहो तो डी की वैल्यू यहीं रख दो, चलो रख देते हैं। डी की वैल्यू कितनी है भाई, यहाँ पे डी कितनी है, a/2, यहाँ से रख देते हैं डी की वैल्यू यहाँ पे, चलो फिर देखते हैं, यहाँ पे डी की वैल्यू है आपका a/2, तो यहाँ से रखोगे तो a/2, यहाँ पे डी की वैल्यू रख दिया आपने, इनटू अब क्या है आपके पास साइन 45 यानी कि 1/√2, तो ये रूट जब ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 2√2, नीचे से 2 कैंसिल कर देना, यहाँ से 2√2 बचेगा, यहाँ से काटो तो यहाँ से 2√2 बचेगा, 2√2 टाइम्स के लेमडा बाई ए। अगर मैं ध्यान से देखूँ तो के लेमडा बाई ए, ये तो एक की वैल्यू ही, एक परपेंडिकुलर वैल्यू, सभी की वैल्यू यही होगी। अब 2 ऊपर है 2 नीचे हैं, तो अगर ध्यान से देखो तो नेट क्या हो जाएगा, सेंटर को मैं ओ मान लूँ तो ये ओ पे कितना हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएंगे, ठीक, तो ये हो जाएगा भाई 2, तो 2 बार 2 टाइम्स 2√2 के लेमडा बाई ए, इधर क्या हो जाएगा 2 टाइम्स 2√2 के लेमडा बाई ए। तो ये अगर मैं देखूँ तो इसका नेट इधर आएगा कहीं, इसका नेट कहीं इधर आएगा, तो यहाँ से लिख सकता हूँ मैं, इधर कहीं नेट आएगा, नेट यहाँ पे होगा ई नेट, जो ओ को फाइंड करना, ई नेट हमको लिखना पड़ेगा क्या, अगर दोनों मैग्नीट्यूड सेम है तो √2 टाइम्स एक का मैग्नीट्यूड, √2 टाइम्स एक का मैग्नीट्यूड, तो कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ये एक का मैग्नीट्यूड, 2 टाइम्स 2√2 इंटू के लेमडा बाई ए। अगर मैं लिखूँ तो ये कितना हो जाएगा भाई, 2 में 4 2 8, तो 8 टाइम्स के टाइम्स लेमडा ऑन ए, ये आपको ई नेट की वैल्यू आएगी एट द सेंटर ऑफ दिस स्क्वायर गिवन, ठीक है, जहाँ पे 4 आपको 4 लेंथ दिए थे, 4 फ्रेम, वायर फ्रेम था, स्क्वायर वायर फ्रेम था, जिसपे चारों के अलग अलग रॉड्स के लीनियर चार्ज डेंसिटी दी थी, ठीक। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बना था, आप चाहो तो ऐसे बना सकते हो, जो ट्राई कर सकते हो आप, इसको इस तरह से बना लो 4 को, ठीक, दोनों को साथ ना देकर एक को इधर दे दो, एक को इधर माइनस लेमडा कूलम पर ये दे दो, इधर प्लस लेमडा कूलम पर मीटर, इधर भी प्लस लेमडा कूलम पर मीटर दे दो, सेंटर पे कैलकुलेट करा दो, क्योंकि सेंटर पे निकाल सकते हो, बहुत सारे में बना सकते हैं, इसको कर सकते हो आप, ये आपके लिए होमवर्क कर लेना आप, ठीक।
अच्छा, अब आगे की देखते हैं कि मतलब इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। और एक भी केस होता है इनफाइनाइट वायर की भी केसेस ले सकते हैं। मान लो चलो इनफाइनाइट वायर की केस ले लिया मैंने, इनफाइनाइट वायर की केस ले लिया, तो इसको भी आप सॉल्व कर सकते हो। इनफाइनाइट वायर है, ठीक है, ये इनफाइनाइट वायर सेमी इनफाइनाइट वायर है। सबसे पहले देखो इस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, तो इस पॉइंट को पी मान लो, तो लिख लेंगे क्या, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। तो इस पॉइंट पी पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, इस पॉइंट पी पे, ठीक है, कि हमारा। तो अब क्या करें भाई, दो वायर दिख रहा है हमको, ये वायर 1 ये वायर 2, बोथ आर सेमी इनफाइनाइट, बोथ आर सेमी इनफाइनाइट। अच्छा, ये ए डिस्टेंस है। अगर ध्यान से देखो तो मैं एक वायर को पकड़ूँ, चलो सॉल्व करते हैं, पहले एक बार ट्राई कर सकते हो आप। इसको क्या लिख सकते हैं, और ये डिस्टेंस क्या होगा। अच्छा, ये कितना एंगल होगा आप बता सकते हो क्या, ये एंगल, ये 90, तो ये कितना हो जाएगा, ये 90, तो ये स्क्वायर है मान लो, तो ये कितना हो जाएगा 45, और दूसरा एंगल ये हो जाएगा। यानी कि मैं बात करूँ तो फॉर रॉड इस अरेंजमेंट के लिए 1 के लिए मैं क्या क्या लिख सकता हूँ भाई, फॉरवर्ड 1 के लिए θ1 लिख सकता हूँ, कितना हो जाएगा θ1 सेमी इनफाइनाइट है, θ1 कितना लिख सकता हूँ मैं, ये दिख रहा है 90 डिग्री सेमी इनफाइनाइट, ठीक है, थोड़ा सा मैं सोचता हूँ, ठीक। θ2 इज़ नथिंग बट कितना हो जाएगा 45 डिग्री नीचे खुल रहा है पॉजिटिव। और अच्छा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, d इज़ नथिंग बट a, यहाँ पे a ही रहेगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक। बिल्कुल सेम इसकी तरह, इसी तरह भी यहाँ पे भी ऐसा हो रहा है, बिल्कुल ये देखो ध्यान से। अब मुझे बोला है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट करना, इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना है एट पॉइंट पी। तो क्या करेंगे, ये चीज़ हमको मिल गया, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट कर सकते हैं। अच्छा, क्या इसमें ई पैरेलल आएगा, हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये सिमेट्रिक नहीं है तो ये पैरेलल भी आएगा। तो पहले एक रॉड के कारण पहले इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे मैं बना देता हूँ। तो ई पैरेलल एंड ई पैरेलल परपेंडिकुलर और ई पैरेलल निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो के लेमडा बाई टी, साइन थीटा में डायरेक्ट रख रहा हूँ वैल्यू, साइन थीटा 90 प्लस साइन 45, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ई परपेंडिकुलर इज, यहाँ पे ए रख सकता हूँ, ये इसको ए बना देता हूँ, इसे देता हूँ ए हो गया ये। तो ये कितना हो जाएगा भाई, के लेमडा बाई ए, और ये हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन रूट 2, विच इज नथिंग बट रूट 2 प्लस 1 टाइम्स के लेमडा बाई रूट 2 टाइम्स ये हो गया। अच्छा, ई पैरेलल भी निकाल सकते हैं इसके लिए, तो ई पैरेलल यहाँ से निकाल लेंगे, कितना आएगा, के लेमडा बाई डी, डी की जगह ए है, कॉस थीटा 2, कॉस थीटा 2 कितना है भाई, कॉस थीटा बराबर 45, यानी कॉस 45 माइनस कॉस थीटा 1, कॉस थीटा 1 कितना, कॉस 90, कॉस 90, कॉस 90 की वैल्यू तो जीरो होगी, सीधे खत्म। कॉस 45 कितनी वैल्यू हो जाएगी, के लेमडा बाई रूट 2 ए, ठीक है। अब ये वैल्यूज़ हम यहाँ पे बना देते हैं, इसको एक बार फिर से डायग्राम आपको समझ में आ जाएगा। चलो यहाँ पे देखते हैं, इस तरह से है कुछ अरेंजमेंट, ये पॉजिटिव इनफाइनाइट, यहाँ पे भी इनफाइनाइट हो। मुझे कहीं यहाँ पे थोड़ा बड़ा बनाता हूँ, मुझे कहीं यहाँ पे फाइंड करना है, ये ए डिस्टेंस है। अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ये पॉइंट है, मैं ब्लैक पेन यूज कर लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ से देखा जाए तो मुझे ई परपेंडिकुलर, तो इसका यहाँ पे आएगा, मिल गया पहले रॉड का, फर्स्ट रॉड फर्स्ट है, यहाँ पे मैं ई परपेंडिकुलर ड्यू टू फर्स्ट रॉड लिख देता हूँ, ठीक है। इसका पैरेलल कंपोनेंट, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो नीचे आना चाहिए, तो ई पैरेलल ड्यू टू फर्स्ट, ठीक। अच्छा, इसका तो हो गया, अब इसका ये दूर भगाएगा तो इसका कितना हो जाएगा भाई, ई परपेंडिकुलर कंपोनेंट दूसरे रॉड के कारण मैं यहाँ पे लिख दूंगा ड्यू टू रॉड 2, और इसका मैं बात करूँ तो पैरेलल कंपोनेंट इधर रहेगा, जो कि वैल्यू सेम होगा क्योंकि दोनों रॉड एक ही जैसे हैं। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ई पैरेलल है किसका, दूसरे के कारण। अब मैं इनको सॉल्व कर लूँगा, तो यानी कि ई नेट जब मैं निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, अब मुझे वैल्यू पता है, मैं सीधे डायरेक्ट रख रहा हूँ यहाँ पे। अगर मैं बात करूँ तो पॉइंट पी है, तो पॉइंट पी पे अगर मैं बात करूँ तो पॉइंट पी पे नेट फील्ड मैंने मान लिया इधर है एक्स एक्सिस में, और इधर वाई में इधर है, तो मैं इसकी वैल्यू निकाल लूँगा। तो E1 परपेंडिकुलर तो कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा आपका, यही रखने देते हैं। चलो इसको थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए के लेमडा बाई ए 1 प्लस 1 अपॉन रूट 2 ही रखने देते हैं। और ये चीज़ कितना था, पैरेलल ड्यू टू 1, पैरेलल ड्यू टू 1 कहाँ पे, यहाँ पे मैग्नीट्यूड तो सही है, तो के लेमडा बाई, तो के लेमडा बाई ए इंटू 1 अपॉन रूट 2 ऐसा भी लिख सकते हैं। अब ये ऊपर मैंने माना है क्योंकि ये बड़ा है,
तो उसमें से ये घटाएं तो बचा कितना, के लेमडा बाई ए बचा। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ के लेमडा बाई ए। और नीचे की बात करूँ तो इसमें भी बचेगा कितना, के लेमडा, करके देख सकते हो बिल्कुल वही है। तो यहाँ पे के लेमडा ए बचेगा। यानी कि अगर मैं बात करूँ कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, तो नेट कहीं आएगा इधर, क्योंकि इसे पैरेलल बनाएंगे और इसे पैरेलल लाइन खींचेंगे, कहीं यहाँ पे कट करेगा। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड नेट आएगा एट पी। तो मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नेट एट पी पे लिख सकता हूँ क्या, चूँकि आ जाएगा क्या, इन दोनों का अंडर स्क्वायर पे, यानी कि मैं √2 टाइम्स डायरेक्ट लिख देता हूँ क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर हैं, √2 टाइम्स के लेमडा बाई ए। दिस इज़ योर आंसर फॉर दैट सेमी इनफाइनाइट रॉड का जो अरेंजमेंट था उसमें इस तरह से निकाल लेंगे। आई होप सबको क्लियर होगा। देखो ठीक है, और भी क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं इसमें, बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। इनफैक्ट मैं एक क्वेश्चन थोड़ा सा एसएचएम को इन्वॉल्व कर दिया है उसमें, ठीक है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने एक इनफाइनाइट रॉड ले रखा है। चलो यहाँ पे आप करते हैं एसएचएम का प्रॉब्लम। आपको थोड़ा सा फंडे इसमें 11th के क्लियर होने चाहिए, सबसे बेसिक कैसे एसएचएम होता है, क्या रूल्स मतलब इसके हैं, ठीक है। तो मैं बात करता हूँ कि बोला क्या है कि यहाँ पे एक, ठीक है, यहाँ पर एक रॉड है जिस पर कि एक लीनियर चार्ज, पॉजिटिव लीनियर चार्ज कितना दे रखा है, ये रॉड है आपका, इस पर लेमडा कूलम पर मीटर आपको पॉजिटिव चार्ज ये दे रखा हुआ है, ठीक है। और इसके साथ मैं एक छोटा सा पार्टिकल, मैं यहाँ पे एक क्यू चार्ज का पार्टिकल ऑफ मास मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया एट अ डिस्टेंस ए फ्रॉम दैट रॉड। ये आपका इस तरह से अरेंजमेंट दे रखा है, ठीक है। अब अगर ध्यान से देखा जाए तो बोला कि इफ़ द पार्टिकल इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द रॉड, वायर बोला है इसने, ठीक, एंड रिलीज, बात एक ही है। अब बोला क्या, देन फाइंड आउट द टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन, टाइम पीरियड की बात कर रहा है, टी की बात कर रहा है कैलकुलेट करने के लिए। तो टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन, इसके लिए एसएचएम का थोड़ा सा हमें यूज करना पड़ेगा, ठीक है। एसएचएम में बेसिक आपको कैसे करना है, हाउ टू फाइंड एसएचएम मैंने बता दिया है, या मैं थोड़ा सा रिवाइज करा दूंगा आपको। अभी देखते हैं कि किस तरह फाइंड करना है। सबसे पहले अगर ये देखा जाए कि इस समय जो चार्ज है वो इक्विलिब्रियम स्टेट में, अगर मैं ऐसा दे रखा है तो मैं मान लेता हूँ कि इक्विलिब्रियम स्टेट में है। इक्विलिब्रियम स्टेट पे है तो भाई इस पर क्या क्या लग रहा होगा, इसे वर्टिकली रखा हुआ है तो प्लेन में, इस पर पहले बात सबसे पहले मास mg, ऊपर चार्ज है तो इस पर एक फोर्स लग रहा होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स, जो कि होगा कितना, चार्ज q इंटू ई, ठीक है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, यानी कि फॉर इक्विलिब्रियम पोजीशन, मैं इक्विलिब्रियम पोजीशन के लिए लिख सकता हूँ क्या लिख दूँगा कि यार दोनों फोर्स बराबर होने चाहिए। अभी तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में मान लिया मैंने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, तो क्या हो जाएगा, दोनों फोर्स बराबर होने चाहिए। दोनों फोर्स बराबर होने के लिए क्या हो जाएगा कि चार्ज है मास q m का, ठीक है भाई। देखें तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ये मास m है चार्ज का, ठीक है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं कितना हो जाएगा, दोनों बराबर होने चाहिए इक्विलिब्रियम पे, दोनों फोर्स एक्जैक्टली सेम होना चाहिए। अगर ये कहीं से जा नहीं रहा तो इक्विलिब्रियम में तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि mg इज़ नथिंग बट इक्वल टू fe, और fe मतलब mg इज इक्वल टू fe। fe की वैल्यू क्या है, q टाइम्स e ड्यू टू दिस इनफाइनाइट वायर। अब इनफाइनाइट वायर है तो इसमें कौन सा केस होगा, परपेंडिकुलर, तो मैं सीधे डायरेक्ट यहाँ पे e की वैल्यू परपेंडिकुलर यहाँ लिख देता हूँ। तो विच इज़ नथिंग बट mg इज इक्वल टू q टाइम्स e परपेंडिकुलर, कितना हो जाएगा आपका, e परपेंडिकुलर की वैल्यू आ जाएगी इनफाइनाइट वायर के केस में, अभी मैंने कराया है, कितना आएगा, 2 टाइम्स k आता था, लेमडा आता था अपॉन d, साइन थीटा, याद करो साइन थीटा 1 और साइन थीटा 1 और थीटा 2 90 हो जाएंगे, तो दोनों की वैल्यू 2 हो जाएगी, 112। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई, 2 टाइम्स k लेमडा बाई, यानी कि mg की वैल्यू यहाँ से आ गई 2 टाइम्स k लेमडा q अपॉन चार्ज q है अपॉन d। मैं इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूँ एक समय के लिए, ठीक है, क्योंकि मुझे इसका यूज़ पड़ेगा। अच्छा, एसएचएम करने के लिए मैंने बोला कि इसने बोला है कि थोड़ा सा स्लाइटली डिस्प्लेस करो, तो पहले मैं एसएचएम की कंडीशन बनाता हूँ, कंडीशन, क्योंकि अब एसएचएम करने की कंडीशंस फॉर एसएचएम, क्योंकि ठीक है ये भी पूछ सकता है कि कंडीशन थोड़ा सा आपको 11th क्लास में आप लोगों ने ये रिवीजन करा रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे ले रहा हूँ 3 स्टेप आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट, कम से कम, कि भैया फाइंड, सबसे पहले क्या करते हैं, फाइंड इक्विलिब्रियम पोजीशन, कि इक्विलिब्रियम पोजीशन आपको पता चल जाए, ठीक है। फिर स्लाइटली डिस्प्लेस्ड द पार्टिकल फ्रॉम इक्विलिब्रियम, ऐसे लिखता हूँ, इक्विलिब्रियम पोजीशन। दूसरा
राइट डाउन फोर्स इक्वेशन एंड फोर्थ अगर मैं बोलूँ तो कंपेयर इट compare it with SHM equation which is nothing but F net is equal to minus KX। अगर ये चीज़ें आपको पता है, ये चीज़ मैं करने वाला हूँ क्योंकि ये बेसिक है। 11th का SHM कहीं भी इन्वॉल्व सकता है, पर्टिकुलरली एक चैप्टर नहीं SHM कहीं भी इन्वॉल्व किया जा सकता है, लेकिन ये बेसिक फंडामेंटल थिंग्स आपको पता होना चाहिए कहीं भी किसी भी SHM के लिए, कहीं भी SHM कर रहा हो कोई भी चीज़ निकालने के लिए, तो ये बेसिक थिंग है जो आपको पता होना चाहिए। कि सबसे पहले क्या करेंगे भाई, इक्विलिब्रियम पोजीशन निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद उसको वहाँ पे इक्विलिब्रियम पोजीशन लेंगे, फिर पार्टिकल को स्लाइडली डिस्प्लेस करेंगे फ्रॉम दैट इक्विलिब्रियम पोजीशन, फिर राउट डाउन फोर्स इक्वेशन निकाल लेंगे और उसको कंपेयर कर देंगे किससे, स्टैंडर्ड SHM की इक्वेशन से। फिर उसके बाद हम वहाँ से टाइम पीरियड कैलकुलेट कर लेंगे। अच्छा, इसके लिए अब थोड़ा सा हम काम कर सकते हैं यहाँ पर कि मैंने ये लिख दिया है कि मैंने ये चीज़, इसको मैं रिजल्ट फाइंड किया, मैंने उसको सर्कल कर देता हूँ कि मैंने ये चीज़ फाइंड कर ली है, ठीक है। और मैं जो दूसरा चीज़ यहाँ पे मैं देखो, मेरे पास स्पेस की कमी है थोड़ी सी, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे सो आई हैव फाइंड देन फॉर इक्विलिब्रियम पोजीशन mg इज इक्वल टू 2k lambda q upon d। so let me draw it first because further it says that, let's say once again there is a lag in between the lectures। okay, then I find that mg is equal to 2 times k lambda q upon d। I have to select the pen first and then okay, this equation I have given the name first। okay, अब आगे चलते हैं, देखते हैं। अब मैं दूसरा डायग्राम ड्रा कर रहा हूँ ताकि आपको बेटर वे में समझा सकूँ एक तरह से देखा जाए। तो इस बार बोला क्या जा रहा है कि अब क्वेश्चन में ऐसा कि बोला गया है कि इस बार क्या बोला है उसने कि थोड़ा सा इसको डिलीट कर दिया गया, किसको, थोड़ा सा इसको डिस्प्लेस कर दिया गया स्लाइटली। तो रॉड ये था आपका, मान लो रॉड ये रॉड था। इस बार क्या था, इक्विलिब्रियम पोजीशन पहले कहाँ पे था, यहाँ पर। अब इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा सा इसको डिस्प्लेस कर दिया है क्योंकि सेकंड स्टेप है ही है। अगर मुझे ऐसे वहाँ पे भी लिखा हुआ है, अब मैं मान लिया चार्ज को मैंने यहाँ पे डिस्प्लेस कर दिया, विच इज़ x डिस्टेंस फ्रॉम दैट रॉड एंड दैट इनफाइनाइट रॉड आई कैन से यहाँ पे। हाँ, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x प्लस डी, ठीक है। यहाँ पे चार्ज गया, अब यहाँ पे चार्ज पे क्या फोर्स, यहाँ पे बस फोर्स में इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो जाएगा, इसलिए फोर्स भी चेंज हो गया, विच इज़ नथिंग बट क्यू ई डैश। ओके, यहाँ पे mg फोर तो कांस्टेंट है, mg फोर तो कांस्टेंट है। अब ये घटा, ये डिक्रीज हुआ, ये तो कांस्टेंट है, यानी कि इसको नीचे लेके आएगा। तो मैं लिख सकता हूँ क्या, फोर्स, ये तो था इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये आपका न्यू पोजीशन है। इस बार मैंने इसको एक्स ऊपर लगा, तो ये न्यू पोजीशन का मैं यहाँ पे मान सकता हूँ कि ये न्यू पोजीशन है। अब मैं बात करूँगा कि इस पर अगर मैं फोर्स बैलेंस लिखूँ तो मैं लिखूँगा क्या कि फोर्स इक्वेशन फॉर न्यू पोजीशन, ठीक है। इसमें क्या देखा जाए कि ये तो स्टेबल तो है नहीं, यहाँ पे ये नीचे जा रहा है, ठीक है, क्योंकि mg यहाँ पे ज़्यादा है, mg का फोर्स ज़्यादा है, और QE ऊपर जाने पर क्योंकि E होता है 2k लेमडा बाई d यहाँ पे बढ़ गया, डिस्टेंस x बढ़ गया, तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड कमज़ोर हो गया होगा क्योंकि पहले ही यहाँ पे QE इज इक्वल टू mg था, यहाँ पे मैंने लिख दिया था। अब यहाँ पे जब ये फील्ड छोटी हो गई और ये बड़ी है तो इसको नीचे लाएगी। अगर मैं लिखना चाहूँ कि मैंने जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव लिया उसी डायरेक्शन में लिखूँ, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि F इज इक्वल टू नथिंग बट Q टाइम्स, यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं Q टाइम्स E डैश माइनस M टाइम्स G। अगर मैं बात करूँ तो Q टाइम्स E डैश जो होगा वो Q तो Q होगा, E डैश क्या हो जाएगा भाई इस बार 2 टाइम्स K लेमडा अपॉन, अब D नहीं रहा, D प्लस एक्स हो गया, ठीक है, इनटू सॉरी माइनस, अब बचा क्या mg को mg रहने दो। ध्यान से देखो, यहाँ से मैं क्या D को बाहर ला सकता हूँ क्या, तो यहाँ से क्या हो जाएगा भाई 2 टाइम्स K लेमडा, यहाँ पे ऊपर Q लिख दिया, मैंने D को बाहर लाया और यहाँ पे क्या बचा कि 1 प्लस एक्स बाई डी, और ये क्या हो जाएगा आपका माइनस mg। अगर ध्यान से देखो यहाँ पे, तो इस चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ,
इस चीज़ को ध्यान से देखो, तो बाई इक्वेशन क्या ये चीज़ mg है? अगर ध्यान से देखा जाए तो क्या ये चीज़ mg है? इस चीज़ को मैं क्या mg लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? mg लिखूँगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगी वैल्यू? यहाँ से मैं लिख सकता हूँ mg, तो हो जाएगा आपका f इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? mg अपॉन 1 प्लस एक्स, 1 अपॉन mg कॉमन ले लो, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स बाई डी माइनस 1। तो यहाँ से मैं ले सकता हूँ mg, यहाँ से 1 माइनस 1 माइनस एक्स बाई डी अपॉन 1 प्लस एक्स बाई डी। इसको क्या लिख सकता हूँ? यहाँ से 1 प्लस एक्स बाई डी को यहाँ से लिख सकता हूँ क्या? ये 1 1 कैंसिल, और यहाँ क्या बचेगा? 1 प्लस एक्स बाई डी। अब हमें पता है कि भाई एक्स बाई एक्स इज़ वेरी 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 स्मॉल डिस्टेंस एज कम्पेयर टू, देन एक्स बाई डी इज़ वेरी 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 स्मॉल देन 1। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, यानी कि ये चीज़ नेगलेक्ट कर सकता हूँ, और ये बन जाएगा अपना क्या? m इक्वल टू एम जी, यहाँ पर माइनस साइन आएगा और ऊपर बचेगा एक्स बाई डी, तो एम जी एक्स बाई डी, वैसे नथिंग मैं इसकी टर्म्स में लिख दूँ तो एम जी बाई डी टाइम्स एक्स। ध्यान से देखो, हमें स्टैंडर्ड इक्वेशन है किससे कंपेयर करना है? अगर मैं ध्यान करूँ तो एफ नेट इज इक्वल टू क्या होता है? एसएचएम की स्टैंडर्ड इक्वेशन माइनस के एक्स, और अगर ये आ गया तो ये के को मैं यूज़ करके सीधे सिंप्लीफाई करके सीधे 2 पाई अंडर रूट लिख सकता हूँ एम बाई के। बिल्कुल वही कहानी है। तो मैं यहाँ से के फाइंड, के की जगह पे यहाँ पे क्या है? के की जगह यहाँ पे तो मैं देखूँ तो एम जी बाई डी है, के की जगह पे एम जी बाई डी। तो मैं डायरेक्ट यहाँ से टाइम पीरियड ले सकता हूँ, ये तो अपना है के डैश, तो ये मतलब अपना के है, तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ भाई? टाइम पीरियड। यहाँ से मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तो यहाँ से मैं लिख दूँगा टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट के की जगह पे क्या है? सॉरी एम तो एम ही है, के की जगह पे क्या है? एम जी बाई डी, और इसकी वैल्यू एम से एम गेट कैंसिल, तो यहाँ से हो जाएगा टी इज इक्वल टू सिंपली 2 पाई अंडर रूट डी बाई जी। ठीक है, ये आपका टाइम पीरियड हो जाएगा, इसको हम फाइंड कर लेंगे, यही टाइम पीरियड रहेगा ऑक्सीलेशन के। ये भी पूछ सकता है क्या एस एच एम ऑक्सीलेशन जो हो रहा है वो एस एच एम है क्या? कह सकते हैं क्योंकि स्लाइटली डिस्प्लेस किए हैं, तो ये एस एच एम की कंडीशन को कंपेयर किए हैं, तो ये एस एच एम ही है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग एस एच एम की कंडीशन फाइंड किए, ये आपका टाइम पीरियड होगा। ठीक, सो थैंक यू।